Dear students, today let us discuss crystal field theory. Crystal field theory gives much better explanation for bonding in coordination compounds. This theory was developed by Hans Bethe and John Ben Black. Let us discuss the main points of this theory. अगर हम इसके मेन पॉइंट्स पे जाएं, what we find, this theory states that the bonding in coordination compounds is purely ionic. Crystal field theory considers the metal ligand bond to be ionic. This theory states that this metal ligand bond is due to electrostatic interaction between the metal ion and the ligand. ये थ्योरी कहती है कि जो मेटल और लिंगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक and it arises due to electrostatic interaction between the metal ion and the ligand. Because these attractions are similar to between ions in a crystal, that is why this theory has been named as crystal field theory. जो इस थ्योरी में बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में प्रपोज की गई है, ये थ्योरी कहती है कि मेटल और लिंगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है एंड दीज अट्रैक्शंस आर सिमिलर to the attractions which exist in ionic compounds. That is, the attractions which exist in ions in a crystal. So that is why this theory is called as crystal field. Now this theory states that the electrostatic attraction may be ion-ion or ion-dipole. Ion-ion come when we have a positive ion metal and negative ion ligand. आपने देखा है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसमें लिंगेंड में भी न्यूट्रल जैसे अमोनिया है और इट में भी नेगेटिवली चार्ज जैसे साइनाइड आयन है, क्लोराइडो आयन, ब्रोमाइडो आयन आपने देखा. इन दैट केस द अट्रैक्शन विल बी आयन आयन. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कौन सी होगी? आयन आयन. इफ बोथ द मेटल आयन एंड द लिंगेंड कैरी चार्ज, metal is positive and ligands are negative. Or it may be ion dipole interaction if the ligand is neutral. अगर लिंगेंड न्यूट्रल है उस केस में ये थ्योरी कहती है कि अट्रैक्शन विल बी ion dipole. Next, this theory points out that the ligands are point charges. This theory considers ligands at point charge. Further, this theory states that in case of free metal ion मतलब जब उसने बॉन्डिंग नहीं की है, जब उसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाया है, all the 5 d orbitals, जो 5 d orbitals हैं, they have same energy. ये थ्योरी कहती है कि पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? सेम. they have same energy. लेकिन when ligand approaches the metal ion to form complex, जब ligand metal ion की तरफ अप्रोच करता है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, this degeneracy is lost. Degeneracy मतलब they have same energy. That is why they are degenerate. Degenerate means same energy. तो कहता है जब ligand अप्रोच करता है towards the central metal ion to form electrostatic attraction, as this theory states, this theory considers the bonding between metal ion and ligand as purely electrostatic. तो ये थ्योरी कहती है कि when ligand approaches the metal ion to form complex, degeneracy of d orbitals is lost. If the ligands, the orbitals lying in the direction of ligand will experience greater repulsion. The orbitals which are lying in the direction of ligand will experience greater repulsion
than those orbitals which are not in the direction of ligand. अगर तो कहता सिमेट्रिकल फील्ड होता, सिमेट्रिकल फील्ड का मतलब है कि सभी लिंगेंड की अप्रोच टूवर्ड्स द ऑर्बिटल एक जैसी होती, एक डिस्टेंस से अप्रोच करते, सिमेट्रिकल फील्ड। और ऑर्बिटल्स आर एट इक्वल डिस्टेंस, वो होता है सिमेट्रिकल फील्ड। कहता है ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं, वही बताता हूं मैं आपको। कहता है जब लिंगेंड से अप्रोच करते हैं टूवर्ड्स द मेटल लाइन, डीजनरेसी खत्म हो जाती है। क्यों खत्म होती है? कहता ऑर्बिटल्स लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लिंगेंड will experience greater repulsion and their energies will be higher than they would be in a symmetrical field. उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी which are in the direction of ligand. Then comparison किससे हो रहा है? Then their energy which would have been if they were placed in the symmetrical field. दूसरे पॉइंट पे कहता है on the other hand the orbitals lying away from the approach of ligand will have lesser interaction with the negative charge of the donor atom of ligand and therefore their energy will be lower. उनकी एनर्जी क्या होगी? lower than which would have been in the symmetrical field. जो किसमें होनी चाहिए थी बच्चे? symmetrical field में. This is the point. Lower than they would have been in the symmetrical spherical field. Symmetrical field और spherical field दो वर्ड यहाँ पे बच्चे यूज किए गए हैं। आप देखें symmetrical field और spherical field, मैंने उसका मतलब भी आपको समझा दिया। जैसे यहाँ पे it is being stated this is symmetrical, एक ही मतलब है symmetrical और spherical field. Spherical field का मतलब क्या है? Spherical field mean if all the ligands are at equal distance from d orbital. Spherical field mean symmetrical field. और ऐसा होता नहीं, d orbital के केस में ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? आपको इसके लिए d orbitals की शेप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बच्चे। We have 5d orbitals, dxy, dyz, dxz. अगर आप dxy और dyz और dxz पे जाएं, what we find, उनमें एक सिमिलरिटी है, their lobes lie in between the axes. इनके लोब बच्चे कहां पे हैं? इन बिटवीन द एक्सिस। जैसे बाई एक्सिस है, सपोज करें ये जेड है, ये एक्स ये बाई, और ये आ गया बच्चे एक्स ये जेड। देयर लोब्स लाई इन बिटवीन द एक्सिस। whereas other set of two d orbitals dx square minus y square, ये देखें बच्चे dx square minus y square और dz square, इनमें क्या खास बात है? their lobes lie along the axis. में एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग भी होती है along xy plane, लेकिन जो दो लोब्स होते हैं वो z एक्सिस पे होते हैं। so we call it dz square, we call it dx square minus y square. तो बच्चे देखिए हमारे पास 5 टाइप ऑफ d ऑर्बिटल्स हैं। उनमें से जो 3 टाइप ऑफ d ऑर्बिटल्स हैं दे हैव सिमिलरिटी, दैट इज देयर लोब्स लाई इन बिटवीन द एक्सिस। और जो दो d ऑर्बिटल्स हैं dx square minus y square, देयर लोब्स लाई along the axis. अब अगर आप, मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। लेट अस हैव ए स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देख के चलें, इसमें क्या है? जो लिंगेंड्स है उनकी अप्रोच कहां से है बच्चे? along the axis. लिंगेंड along the axis अप्रोच कर रहा है। इट इज x एक्सिस, इट इज y एक्सिस। यहाँ पे क्या होगा बच्चे? अबव एंड बिलो द प्लेन, यहाँ पे z एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें उसके केस में भी क्या है बच्चे? along the axis. ये लिंगेंड है, ये लिंगेंड, दीज आर लिंगेंड, 6 लिंगेंड्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिंगेंड्स होते हैं? 6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जो लिंगेंड्स का अप्रोच है उसका देखिए ज्योमेट्री ऐसा है कि जो लिंगेंड्स का अप्रोच है दैट इज अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग से है। एक्सिस के अलोंग के रास्ते में कौन पड़ते हैं? ये दो ऑर्बिटल, दीज टू डी ऑर्बिटल्स, दैट इज dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इससे क्या होगा? लिंगेंड का जो रिपल्शन है इनको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू दीज थ्री।
इसका मतलब साफ है कि जो d ऑर्बिटल्स हैं, 5d ऑर्बिटल्स, दे विल स्प्लिट इनटू ए सेट ऑफ, ये ध्यान से देखना, ये जो मैं बता रहा हूं, ये मैंने बनाया d ऑर्बिटल्स 5, had there been symmetrical field, अगर सिमेट्रिकल फील्ड होता मतलब पांचों को रिपल्शन बराबर मिलती। लिंगेंड्स का अप्रोच ऐसे होता कि पांचों को रिपल्शन बराबर मिलती, तो पांचों की एनर्जी सेम लेवल से बढ़नी थी बच्चे, सेम लेवल से। ऐसा हुआ नहीं। हमने देखा कि लिंगेंड्स का जो अप्रोच है, दैट इज अलोंग द एक्सिस इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इट इज अलोंग द एक्सिस इन केस ऑफ स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्स, एंड इट इज इन बिटवीन द एक्सिस इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मैं यहां से आपको दिखा देता हूं। दिस इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर आप देखें, ये मैंने 4 लिए, 1 1 2 3 एंड 4, ये 4, 1 2 और ये 4। यहाँ पे देखिए जो लिंगेंड एक्सिस यहाँ पे है, मैं इसको ऐसे रखूंगा कॉम्प्लेक्स, बेटर अंडरस्टैंड। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा, ऐसे रखूंगा। एक्सिस यहाँ पे है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। यहाँ पे लिंगेंड का अप्रोच कहाँ पे देखेंगे, एक्स एंड वाई एक्स। तो लिंगेंड का अप्रोच कहां से है, इन बिटवीन द एक्सिस। लिंगेंड का अप्रोच है इन बिटवीन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस ना। ये एक्स एक्सिस है बच्चे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो लिंगेंड का अप्रोच कहां से है, इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में से। इसके केस में एक्सिस के बीच में कौन है, एक्सिस के बीच में है ये 3 ऑर्बिटल। अगर आप देखें, ये 3, dxy, dy z एंड dxz। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनको रिपल्शन 3 को ज्यादा मिलेगी और इन 2 को कम। Whereas इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन 2 को ज्यादा मिलेगी। ऑक्टाहेड्रल में क्या है, ऑक्टाहेड्रल देखिए स्केल प्लेनर में बना सकता हूं, ऑक्टाहेड्रल मेरे से नहीं बनेगा। देखिए बच्चे, ये है, ये स्केल प्लेनर देखिए, टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ स्केल, अब इनको ज्वाइन करें, स्केल बन जाता है। अप्रोच कहां से है, एक्स एक्सिस, लिंगेंड है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर इसी का ऑक्टाहेड्रल बनाना होगा तो यहां लगाना पड़ेगा, एक यहां, एक इसके पीछे। सारे एक्सिस दिखा दिए। इसको मैंने ऐसे दिखाना था आपको, मैं जानबूझ के ऐसे दिखा रहा था, उस स्केल सामने देखे। तो ये स्केल है हमारा बच्चे, दिस इज स्केल। तो अप्रोच कहां से है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इन केस ऑफ स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, अप्रोच इज अलोंग द एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल में भी अप्रोच कहां होगी, ऑक्टाहेड्रल ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, एक्स वाई एंड जेड, यानी कि अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस पे कौन फॉल कर रहे हैं, अलोंग द एक्सिस, जिनके लोब अलोंग द एक्सिस है, देखिए ध्यान से, अलोंग द एक्सिस है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। इनके लोब कहां पे हैं, अलोंग द एक्सिस। इसका मतलब साफ है कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा या सॉरी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो लिंगेंड का अप्रोच अलोंग द एक्सिस होगा। उसके अप्रोच के रास्ते में जो आएंगे उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, दैट इज dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर को रिपल्शन ज्यादा मिलेगा और इनको रिपल्शन कम मिलेगा। देन the repulsion which they would have experienced had they been placed in symmetrical field। अगर सिमेट्रिकल फील्ड होता तो सबको बराबर रिपल्शन मिलता। सिमेट्रिकल फील्ड है नहीं, आपने देखा अप्रोच ऑफ लिंगेंड है ही इस तरीके से, शेप ऑफ ऑर्बिटल है ही इस तरीके से कि आइदर द अप्रोच इज अलोंग द एक्सिस और इट इज इन बिटवीन द एक्सिस। इन केस ऑफ, जैसा मैं डिस्कस कर रहा था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में बच्चे क्या होगा, स्प्लिटिंग ऐसे होगा, d ऑर्बिटल 2 सेट में स्प्लिट हो जाएगा। ये बच्चे हैं d ऑर्बिटल फ्री मेटल आयन, फ्री। ये है सिमेट्रिकल फील्ड, तो हाइपोथेटिकल, ऐसा है नहीं, ये है एक्चुअल, ये एक्चुअल है। इसमें आपने क्या देखा कि उन d ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा बढ़ी जो उसके अप्रोच के रास्ते में आए। क्योंकि अप्रोच में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, तो अप्रोच इज अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस 2 है तो 2 की एनर्जी ज्यादा होगी, these two have higher energy। और जो दूसरे 3 हैं उनकी एनर्जी, रिपल्शन उनको ही मिला बच्चे ना, देखें रिपल्शन उनको ही मिला, एनर्जी उनकी बढ़ी पर उनकी एनर्जी कम बढ़ी। इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ी 2 की, इनकी 3 की कम बढ़ी। तो दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी खत्म होगी, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में बच्चे क्या होगा, सॉरी टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल तो समझा दिया आपको। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होगा वो भी दिखा देता हूं। दिस इज the situation when there is degeneracy, we have degenerate orbitals। अभी कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, ठीक है, लिंगेंड ने अप्रोच किया,
दिस इज द हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हैड देयर बीन सिमेट्रिकल फील्ड, अगर सिमेट्रिकल फील्ड होता पांचों की एनर्जी बराबर बढ़ती। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में मैंने क्या बताया, व्हाट आई सेड, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में मैंने क्या बताया कि जो अप्रोच ऑफ लिंगेंड है बच्चे वो कहां से है, वो है टेट्राहेड्रल में इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में है अप्रोच टेट्राहेड्रल। एक्सिस के बीच में कौन पड़ता है बताइए, हु फॉल्स इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस ये तीन पड़ते हैं, देखो एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, इनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस है। लिंगेंड आपका अप्रोच कर रहा है इन बिटवीन द एक्सिस, तो अंडरस्टूड है इन तीन की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। तो इट्स डायग्राम इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ व्हाट, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में इन दो की एनर्जी ज्यादा बढ़ी, टेट्राहेड्रल में इन तीन की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है बच्चे, और दो की कम बढ़ेगी उनकी भी। ओरिजिनल ये है बच्चे, इसके साथ देखना आपने, ये हाइपोथेटिकल है ये वाला, ये तब है अगर सिमेट्रिकल फील्ड मिलता, अगर लिंगेंड का अप्रोच सबके लिए बराबर डिस्टेंस से होता, पर ऐसा है नहीं। उसका कारण मैंने आपको बताया कि लिंगेंड या तो अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस या इन बिटवीन, और जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप ऐसी है कि सारे के सारे एक जैसे नहीं है। डी ऑर्बिटल तीन ऐसे हैं जिनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस हैं, और दो ऐसे हैं जिनके लोब्स अलोंग द एक्सिस, उसकी वजह से सारा डिफरेंस आ रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल हो रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बच्चे। अब हम यहां से इसको रीड कर लेते हैं, सारी हम क्लियर कर देते हैं। सो लेट अस नाउ रीड इट फ्रॉम हियर। ये देखिए बच्चे, कहता है व्हेन लिंगेंड अप्रोच द मेडलाइन, जब लिंगेंड मेडलाइन को अप्रोच करेगा, द डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज लॉस्ट, द ऑर्बिटल्स लाइंग in the direction of Lingard will experience greater repulsion and their energy will be higher than they would be in a symmetrical field. On the other hand, the orbitals lying away from the approach of Lingard will have lesser interaction with the negative charge of donor atom of Lingard, and therefore their energy will be lower than they would be in spherical field. Thus, due to electrical field of Lingard, the energy of 5d orbitals split. मैंने आपको दिखाया कैसे स्प्लिटिंग होती है। दिस कन्वर्शन ऑफ 5d ऑर्बिटल्स डीजनरेट d ऑर्बिटल्स ऑफ द मेडलाइन इनटू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, दो सेट बन रहे बच्चे, एक तीन का एक दो का। ऑक्टाहेड्रल के केस में दो हायर एनर्जी पे तीन लोअर एनर्जी पे, हेक्टाहेड्रल के केस में तीन हायर एनर्जी पे दो लोअर एनर्जी पे ना। इसी को बोलते हैं बच्चे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, एंड व्हाई देन दैट इज व्हाई वी कॉल इट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमने किसको बोला, जो डी ऑर्बिटल आपके दो सेट में स्प्लिट हुए, हमारे जो डी ऑर्बिटल हैं दो सेट में स्प्लिट हुए, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिंगेंड, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्शन गिवन बाय द लिंगेंड, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ बच्चे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद डिफरेंट कोऑर्डिनेशन। मतलब जो एनर्जी का गैप है, एक तो आपने देखा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में देयर इज डिफरेंस, स्प्लिटिंग कैसे हुई। एक और चीज इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये जो मैं एनर्जी का गैप दिखा रहा हूँ, एनर्जी का गैप ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये एनर्जी का जो गैप है बिटवीन द टू सेट, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर वेरी करेगा, लिंगेंड टू लिंगेंड वेरी करेगा। लिंगेंड कितनी रिपल्शन दिया, ज्यादा रिपल्शन दिया तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, कम रिपल्शन दिया कम स्प्लिटिंग। आपको याद होगा मैंने कहा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिंगेंड साइनाइड को बोला था, तो साइनाइड ज्यादा स्प्लिटिंग करता, उसमें एनर्जी गैप ज्यादा होता। मैंने कहा था क्लोराइड बी फील्ड लिंगेंड, मतलब क्या था उसका, क्रिस्टल फील्ड थ्री बताया गया अभी, मतलब उसमें स्प्लिटिंग कम होती। तो एनर्जी का जो गैप है बिटवीन द टू सेट दैट वेरीज फ्रॉम स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चे। अब इसी चीज को हमने एग्जांपल की मदद से, जो मैंने पहले ही आपको इलुस्ट्रेट कर दिया, यहाँ भी इसको डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। तो लेट अस सी, देख लीजिए बच्चे, या ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की गई है, लेट अस हैव अ लुक ऑन इट। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो मैंने आपको समझा दिया वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है। लेट अस एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बाय टेकिंग सैंपल ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटिंग द लिगेंड्स बाय स्मॉल नेगेटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज जैसे बोला, एंड मेडलाइन एज पॉजिटिव चार्ज। ये बच्चे लिगेंड है, ये पॉइंट चार्जेस नेगेटिव और ये मेडलाइन है पॉजिटिव। द ज्योमेट्री ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज एज शोन, इसकी ज्योमेट्री है, लेकिन याद रखिए बच्चे दिस इज अबव द प्लेन,
एंड दिस इज बिलो द। मैंने आपको इसकी मदद से दिखा दिया, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपके 4 लिंगेंड आगे बच्चे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये बच्चे जेड एक्सिस। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, एक्स वाई एंड जेड। तो लिंगेंड की अप्रोच कहां से है? अलोंग द एक्सिस। द लिंगेंड इज अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस। ठीक है बच्चे। octahedral complex as shown in figure here, negative charge lies along x, y and z axis। कहने का मतलब है लिंगेंड is approaching from along the axis and Madeline is at its origin। Madeline सेंटर में है, तभी तो इसको बोलते हैं सेंट्रल Madeline। तो let us consider the effect of ligand on the energy of d orbital। d orbitals की एनर्जी पे लिंगेंड्स कैसे इफेक्ट करते हैं? the dx square minus y square and dz square orbitals have lobes lying along the axis। मैंने डायग्रामेटिकली आपको दिखाया। and hence they point towards the ligand। ligand along the axis आ रहे हैं, और dx square minus y square and dz square, ये दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके लोब लाई करते हैं along the axis। जहां हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग भी होती है वो भी xy प्लेन पे, तो their lobes lie along the axis, whereas lobes of dxy, dxz and dyz orbitals lie in between the axis and hence they lie in between the। इसका मतलब वो अप्रोच ऑफ लिंगेंड के इन बिटवीन है। जिस डायरेक्शन से लिंगेंड आ रहे हैं ये उसके रास्ते में नहीं आ रहे, ये उसके इन बिटवीन है, लिंगेंड की अप्रोच के इन बिटवीन। एज ए रिजल्ट, रिपल्शन बिटवीन द लिंगेंड and the dx square minus y square dz square orbitals are greater than the repulsion between the ligand and the remaining 3 d orbitals। तो रिपल्शन ज्यादा किसको दी? लिंगेंड की अप्रोच अलोंग एक्सिस है, तो रिपल्शन ज्यादा इनको मिली। रिपल्शन दूसरों को मिलेगी, उनको कम मिलेगी, इनको ज्यादा मिलेगी। एज ए रिजल्ट, the 3d orbitals experience less repulsion from ligand and are stable and of lower energy than 2d orbitals। इन 2d ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्शन मिली, उन 3d ऑर्बिटल को कम रिपल्शन। एज ए रिजल्ट, इससे क्या होगा बच्चे? द d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू ए सेट ऑफ 2। जो चीज मैं आपको पहले दिखा चुका हूं वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे। तो हेंस द d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू ए सेट ऑफ 2। ये देखिए बच्चे यहाँ पे लिखा होगा, एज ए रिजल्ट the 3d orbitals experience less repulsion from ligand and are stable and of lower energy than 2d orbitals। Thus, d orbitals split into two sets, dxy, dyz, dxz, and dx square minus y square and dz square in octahedral field। The 3d orbital of low energy are called E2g orbital and 2d orbital of high energy are called as EG orbital। ये बच्चे स्प्लिटिंग दिखाई है इसकी। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल नॉट। क्रिस्टल आपका कितना स्टेबल होगा बच्चे, वो ये जो डेल नॉट है ये डिसाइड करेगा। कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल होगा। अगर लोअर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू द दिस वन, यहाँ पे कम है यहाँ ज्यादा है, तो अंडरस्टूड है बच्चे उसके इसमें कॉम्प्लेक्स, जैसे यहाँ 3 है यहाँ कोई नहीं है, और कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि लोअर सेट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे मीन लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन होंगे, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दिस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्योंकि ये हमें बताएगी, डेल नॉट की वैल्यू बताएगी कि हाउ मच कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। तो ये बच्चे इसकी डायग्राम है ऑक्टाहेड्रल की। इसमें देखिए बच्चे ये 5d ऑर्बिटल्स हैं फ्री आयन में, अभी कॉम्प्लेक्स नहीं बना। ये है बच्चे एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल स्फेरिकल फील्ड। स्फेरिकल का मतलब मैंने बताया कि जब अप्रोच ऑफ लिंगेंड एक जैसी हो टूवर्ड्स ऑल द क्या बच्चे डी ऑर्बिटल। ऐसा है नहीं, आपने खुद देखा डी ऑर्बिटल की शेप ही ऐसी है कि लिंगेंड आइदर अप्रोच अलोंग द एक्सिस और इन बिटवीन। तो जो अलोंग द एक्सिस है उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ी, जो इन बिटवीन द एक्सिस उनकी एनर्जी कम बढ़ी। तो ये बच्चे एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, ये ओरिजिनल है फ्री मेडलाइन, ये हाइपोथेटिकल है ये वाली सिचुएशन, और ये है एक्चुअल मॉलिक्यूल में कॉम्प्लेक्स में जो सिचुएशन होगी।
मतलब 2d ऑर्डर हायर एनर्जी भी होंगे और 3 क्या होंगे, लोअर, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट बच्चे इसमें आता है टेट्राहेड्रल। स्केल प्लेनर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जो डायग्राम है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, आपके लेवल की नहीं है, वो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब बात करते हैं बच्चे हम स्केल प्लेनर। स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्स के में क्या बच्चे, इट कैन बी शोन फ्रॉम ज्योमेट्री दैट टेट्राहेड, सॉरी स्केल प्लेनर मैंने कहा कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी डायग्राम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, लेकिन उसमें भी जो अप्रोच है बच्चे वो लॉन्ग एक्सिस। स्केल प्लेनर में भी जो अप्रोच है वो along the axis. It can be shown from the geometry that tetrahedral complexes, the 2d orbitals experience less repulsion and are of lower energy than the 3d orbital. इसमें जो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर है उनको रिपल्शन कम मिला, और जो dx बाई dxz और dy z है उनको रिपल्शन ज्यादा मिला। क्यों मिला, मैंने आपको समझाया इसके स्ट्रक्चर से बच्चे, पेपर पे ये पता नहीं चलेगा, मैंने इसकी मदद से आपको समझा। आप इसको ऐसे पकड़ के रखें, इसमें साफ पता चलता है। ये एक्स एक्सिस है बच्चे, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो लिंगेंड कहाँ से आ रहे हैं, अगर आप इसको देखें, लिंगेंड कहाँ से आए, लिंगेंड आए इन बिटवीन द एक्सिस। द लिंगेंड अप्रोच इज फ्रॉम इन बिटवीन द एक्सिस। इन बिटवीन द एक्सिस कौन है, dx वाई, मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाया, जो dx वाई और dy z है उसमें लूप्स कहाँ पे होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। जैसे ये dx वाई की मैंने ड्रॉ, लिंगेंड कहां से आ रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस। अंडरस्टूड है, dx वाई dy z और dx z को रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, दैट इज वाई देखिए आप, दे हैव हायर एनर्जी एंड dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जो ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल दे हैव लोअर। तो इसकी जो डायग्राम है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बच्चे, दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट दैट ऑफ व्हाट, ऑक्टाहेड्रल। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा डेल ओ है बच्चे, डेल बोलते हैं इसको, डेल ओ, ओ मीन ऑक्टाहेड्रल, डेल टी, टी मीन टेट्राहेड्रल। जैसे ऑक्टाहेड्रल में हमने कहा T2G और EG, इसमें बोलते हैं बच्चे E और T इन केस ऑफ दिस, जो हमारे टू सेट ऑफ डी, ये बच्चे है। एक और चीज में याद रखना बच्चे कि इट हैज बीन फाउंड दैट splitting of tetrahedral complex is considerably less than octahedral complex। होना भी चाहिए क्योंकि उसमें 6 लिंगेंड रिपेल कर रहे हैं, इसमें 4 कर रहे हैं। जहां पे 4 लिंगेंड रिपेल करेंगे रिपल्शन कम होगा। तो जो स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होता, मतलब ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ये ज्यादा होता, टेट्राहेड्रल में ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या होता, कम। और इसका ये रिलेशन है, डेल टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल, इट इज लेस देन व्हाट, डेल ओ। डेल ओ से बहुत कम है, 4/9, 4/9 और ऑलमोस्ट हाफ है। Splitting in tetrahedral complex is almost half than that of octahedral। थैंक यू वेरी मच। इसको अच्छे तरीके से बच्चे अंडरस्टैंड करिए। होप आपको ये जो टॉपिक है ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। आई ट्राइड माय बेस्ट।